they are doing BTech, BCA, MCA, and they are quickly shifted from IT to banking or insurance. एवरीबडी थिंक्स कि जल्दी जल्दी स्विच करेंगे हमारा पैकेज बढ़ेगा. यूथ का तो इशू है ही, हाँ जी. क्योंकि दे वांट क्विक मनी, बट समहाउ कंपनीज का भी थोड़ा इशू है. पीएम एंड प्राइम मिनिस्टर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वी आर डूइंग दैट. आप लोग वो Exactly. I believe in equalization, not exactly women empowerment, but yes, this company belongs to women because most of intentionally it's not happening, but most of employees in my company are females. Females के साथ stability रहती है. Stability रहती है. Exactly. They never switch so early. Growth never related with money. Growth is always related with the learning. So I want to create an opportunity for those people they are not selected for. 70% ऐसे होते हैं जिनको practical knowledge नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में उनको practical knowledge नहीं दी जाती है. Okay. So we already had employees for AI and अभी उनकी ट्रेनिंग going on है. एंड प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली आगे AI के प्रोजेक्ट्स हमारे पास लाइन अप हैं. ओके ऑलरेडी लाइंड अप है. हम हायरिंग ही तभी करते हैं जब हमारे पास पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स. आई नेवर हायर्ड अ स्किल, आई ऑलवेज हायर एटीट्यूड, बिकॉज स्किल सेट मैं सिखा सकती हूँ, एटीट्यूड मैं सिखा नहीं सकती. मेरा मोटिव हमेशा से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था और नीड क्रिएट करना था. कि फील्ड में करप्शन है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा है, बट थोड़ा बहुत हर जगह है. नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो टोटली आईटी बेस्ड है, जिसकी मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है. इसीलिए मैंने अपने साथ एक आईटी एक्सपर्ट को बुलाया है, आकांक्षा जी, जो अपनी एक कंपनी खुद रन करती हैं और उसमें जो उनके की फैक्टर्स है, मैं चाहूंगी कि आप उनसे ही समझें और सुने, ताकि आपको पता चले कंपनी एस्टैब्लिश करने के पीछे कितना एफर्ट लगता है. थैंक यू आकांक्षा जी मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए. आप मुझे थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, उसका क्या मीनिंग है, और आपने कब सोचा कि लेट्स एस्टैब्लिश माय ओन कंपनी. I also want to thank you, Ritika, for inviting me for this broadcast. And I just want to tell you one more thing, that I am also not completely from IT background. Okay. Previously, I was in banking. I served for banking around 10 to 12 years. Okay. Then I shifted in IT background. Okay. So this is a very great question. Why I started this company? When I was in banking, I was in trainings. So I always seen in my training sessions, there are lots of people, they are shifting their career from IT to insurance banking. Okay. So IT to insurance. Yes. Okay. So I always in tension ki why it is happening. Why they are doing BTech, BCA, MCA, and they are quickly shifted from IT to banking or insurance. Then I realized due to lack of resources, that lack of opportunities, they are shifting because they, after their graduation or post graduation, they immediately want to switch in career, like job or whatever they want to do in life. So when they don't succeed in that, they go here and there. So वही बेसिकली लोग जो स्विच करते हैं, एक्चुअली ना ये बहुत बच्चों में ना ये एक है, ये मिथ है. मिथ है, आई डोंट नो मिथ है कि नहीं, वो तो आप मुझे बताएंगे बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट. लेकिन वो सोचते हैं हम जल्दी जल्दी स्विच करेंगे ना तो हमारा पैकेज बढ़ेगा. इसी के साथ मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, बिकॉज दैट्स वेरी यूनिक एंड आई वांट कि आप खुद से अपनी कंपनी का नाम बताओ और उसके बारे में बताओ कि हाउ डज दिस नेम केम अप इनटू योर माइंड. EgTech, my company name is EgTech Consultancy Services Private Limited. Okay. And Egg is a basically German word. It means it's a pure. So my company name is Pure Technology. Pure Technology. Yes. So in every form, we want to be pure. Right. Like in technology wise, in behavior wise, everything we want to pure in my company. So that's why I choose this name. ओके. अब हम उस वाली बात पे आते हैं, हॉपिंग वाली बात पे. Yes. है ना. तो हॉपिंग जो जैसे मैं अपने भी घर में देखती हूँ, इवन हमारे भी भाई बहन हैं, एंड एवरीबडी थिंक्स कि जल्दी जल्दी स्विच करेंगे हमारा पैकेज बढ़ेगा. आपका क्या उस चीज पे टेक है, बिकॉज आई अज्यूम आप लोग भी ट्रेनिंग देते हो अपने अंडर.
मेरा एक्चुअली थोड़ा सा ओपिनियन डिफर है. देयर इज अ यूथ का तो इशू है ही, हाँ जी. क्योंकि दे वांट क्विक मनी. ए- बट समहाउ कंपनीज का भी थोड़ा इशू है. दे आर नॉट एबल टू क्रिएट अ बिलोंगिंगनेस इन देयर एम्प्लॉयज, बिकॉज जो उनका रिलेशन है ना बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉय, वो सिर्फ बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉय है. दे डोंट वांट टू मेक दैट एम्प्लॉय एज अ फैमिली मेंबर. अगर वो कर लेते ना, बिलीव मी, कंपनी एम्प्लॉय विल नेवर लीव कंपनी. So basically सो work बिलोंगिंगनेस culture. इज अ, क्योंकि यूथ, हम भी यूथ ही, हम यूथ से यहाँ तक पहुंचे. हमारा भी वही फोकस है कि एम्प्लॉय से हर समय काम की बात करना, प्रोडक्टिविटी की बात करना है, Absolutely. बिकॉज हम पैसे दे रहे हैं. जी. बट हर समय हमें प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करनी है. सम टाइम यू नीड टू बी पर्सनल विद योर एम्प्लॉय. That आप- human touch. अगर Yes, मैं बोलूँ human तो touch is very much required. As a owner, मुझे लगता है, मतलब सबको, जब बहुत कंपनी बहुत बड़ी होती है तो इट्स नॉट पॉसिबल एवरी डे यू कैन कनेक्ट विद योर एम्प्लॉय. बट इफ यू कैन कनेक्ट वंस इन अ मंथ, वो ही बहुत that's सफिशिएंट more होता than है. enough. उनको लगता है somebody is there to taking care of देयर जो भी उनकी इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज कई हैं, बार इंसान घर प्रोफेशनल पे issues उतना हैं. नहीं शायद से डिस्कशन कर सकता, तो एटलीस्ट वहां बाहर में एटलीस्ट वर्क कल्चर हमारा इतना अच्छा हो जाए कि हमें आना Exactly. भी अच्छा लगे, वहां काम करना भी अच्छा लगे. एग्जैक्टली, उनको अपना दूसरा घर फील होना चाहिए कंपनी. आपको पता है, जब मेरी कंपनी में गया, व्हेन आई एंटर ना, सारे बच्चे लाइन से बैठे होते हैं और मेरा केबिन सबसे लास्ट में है. एक बार मैं सारे बच्चों को देखती हूँ, ठीक है, और आई रियलाइज कि मेरा आज कौन सा बच्चा परेशान है किस चीज के लिए. एंड यू कैन मेक आउट इजीली. यस, और मैं उसको जरूर खुद से पर्सनली बुला के उससे बात करती हूँ. वो कनेक्ट क्रिएट करता है बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉय. जो बहुत जरूरी वो है. बहुत जरूरी है. और हर, मतलब ठीक है बच्चों को पैसा चाहिए, बट समहाउ हमें भी एफर्ट डालना पड़ेगा कि उनको ये रियलाइज होना कि मनी इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. योर पीस, योर कंफर्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो आकांक्षा जी, बेसिकली आपकी कंपनी करती क्या है, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या काम है आपका? बेसिकली वी आर स्पेशलाइज इन आईटी, Hmm. software development, digitalization, and staff augmentation, and so many product we are making. And basically we are working for government of India. अच्छा. So PM and Prime Ministers के जितने भी projects हैं, we are doing So that. आप लोग वो handle Exactly. करते हैं. It's very big MHRD thing is to do. our big client. Okay. And IM Kashipur, CPPRI, and क्या ये PM Shri, बहुत सारे, EPFO is our big client. Okay. Yes. तो आप जैसे बच्चे रिक्रूट करते हो, ऑब्वियसली आपका मैन पावर भी बहुत चाहिए. Right, right. एंड मतलब इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपके यहाँ पे कितने बच्चे काम करते हैं, मतलब कितना स्टाफ We है? have around 400 employees right now, and Okay. we are thinking this year we will be double in strength. वाव, that's nice. Yes. तो आपका फोकस के वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी Yes, रहता है, definitely. बिकॉज जनरली मैं I believe in equalization, not exactly be women empowerment, but yes, this company belongs to women, because most of, intentionally it's not happening, but हाँ. most of employees in my company are females. तो ये एक तरह से एक चेंज भी है, आई वुड से, एंड एक और मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन है, कि फीमेल्स के साथ स्टेबिलिटी रहती है. स्टेबिलिटी रहती है. Exactly. They never switch so early. अच्छा. Yes. अगर वर्क कल्चर Because ऑब्वियसली उनको अच्छा लगता मिले है तो. कि कंफर्ट जोन उनके लिए ज्यादा जरूरी है, हाँ, rather than money. rather than money, हाँ. correct. तो वो फिर स्टे करते हैं आपके साथ, और आपके लिए भी इजी है कि अगर स्विच नहीं कर रहा है बंदा जल्दी, तो आपको जल्दी से ट्रेन नहीं करना उनको, हाँ. आपको टाइम खराब नहीं करना उनके आपको साथ. क्या लगता है आज का यूथ क्या गलती कर रहा है, मेजर गलती क्या कर रहा है? एक आपने हॉपिंग तो बताया, बट Exactly. व्हाई हॉपिंग इज सच अ बिग प्रॉब्लम? जब अगले बंदे को पैसा अच्छा मिल रहा है कहीं और, ऑब्वियसली सब बंदे वहीं जाएंगे जहाँ दे Exactly. विल गेट गुड मनी. एग्जैक्ट. एक्चुअली उनको ना लर्निंग पे फोकस नहीं है, जो यूथ का फोकस है, उनका Okay. फोकस मनी पे है. हाँ. वहीं पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लर्निंग तो हमेशा उनके साथ रहने वाली है. मनी एक टाइम के बाद उनकी स्टेगनेट हो जाएगी. एक टाइम के बाद ही आपको अप्रेजल्स, प्रमोशंस मिलेंगे, लेकिन लर्निंग जितना आप लर्न करते रहेंगे उतना आप ग्रो करते रहेंगे. तो उन्होंने जो ग्रोथ को जोड़ा है ना, वो मनी से जोड़ दिया है. बट ग्रोथ नेवर रिलेटेड विद मनी. ग्रोथ इज ऑलवेज रिलेटेड विद द लर्निंग. हाउ मच यू लर्न, हाउ मच यू ग्रो, हाउ मच यू रिसर्च, दैट इज एक्चुअली ग्रोथ. सो आपने अपना टाइम कैसे, आपने कितना टाइम दिया अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए? मींस आपने कब
वर्क करना शुरू किया एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू स्टिक्ड अराउंड विद वन कंपनी? फिर आपने सोचा अब मैं इसलिए सक्षम हूँ कि मैं अपना कुछ कर Exactly. सकूं. My previous employer was ICISI. Hmm. I stay there around more than 8 years. Okay. And 8 second years is a big employer time. was Tata. अच्छा. I was in training there, and I stayed there around more than 4 years. And then I think I need to do some social work. अच्छा, सोशल वर्क भी Yes. एज एन आपके माइंड में सोशल वर्क भी रहता Exactly. है. So I want to create an opportunity for those people they are which they are not selected for tier 1 companies. So then I came, मतलब this idea came to in mind कि क्या मैं ऐसा करूं कि इनको जॉब भी मिले और लेकिन ये उस लायक बने तब इनको वो जॉब मिले. ओके. तो मैंने एक लाइक एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री स्टार्ट की थ्रू Okay. ट्रेनिंग सेशंस. तो अभी हमारा जो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, बच्चों को हायर करते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ मतलब 70% ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है. तो बड़ी कंपनीज वो हायर नहीं करती उनको. तो ये आपका क्राइटेरिया भी आप मुझे Exactly. बता रहे हो. तो हम क्या करते हैं, उनको हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं. 6 मंथ्स हम ट्रेनिंग देते हैं, पेड ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि उनका जो आने जाने के एक्सपेंसेस हैं वो बेयर हो सके. हाँ, उसको कुछ कहते हैं. कंपनसेशन देते हैं उनको. हाँ, ओके. ठीक है. जब वो काम करने के लायक, और हम कभी उनको सपोर्ट में नहीं डालते. ओके. हम हमेशा पहले दिन से उनको डेवलपमेंट के लिए तैयार करते हैं अनटिल वो एंड तक बिल्कुल डेवलपमेंट कर ही ना पाए, तब हमारा लास्ट ऑप्शन होता है उनको सपोर्ट में भेजने का. ओके. अदरवाइज हम चाहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है, जो क्रिएटिविटी है, उसको वेस्ट नहीं करना है अपने प्रॉफिट के लिए. सो ये आपका थॉट सो ट्रेनिंग इज हमारा जो मेन फोकस एरिया है, ट्रेनिंग है. हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि क्लाइंट को एक्चुअली एम्प्लॉय से चाहिए क्या है. उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने ट्रेन करते हैं एम्प्लॉय को, और अगर डिप्लॉय करना होता है तो डिप्लॉय करते हो, इन हाउस प्रोजेक्ट कराना हो तो इन हाउस प्रोजेक्ट कराते हैं. आप क्लाइंट्स का, आपको क्लाइंट्स क्राइटेरिया कैसे आप जज करते हो कि मतलब होता है ना कि ये मेरे क्राइटेरियाज है, जो क्लाइंट मेरे इन क्राइटेरियाज में फिट आएगा आई विल वर्क फॉर दैट. नहीं, एक्चुअली क्लाइंट इसमें रिवर्स है. क्लाइंट हमें सेलेक्ट करता है. क्लाइंट आपको सेलेक्ट करता है बिकॉज वी आर इन पैनल वेंडर फॉर मिक्सी, ओके, यूपीडेस्को, DCIL. ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो वेंडर्स को सेलेक्ट करती हैं कि ये वेंडर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं काम करने के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए या नहीं है. उसमें प्रॉपर टेंडरिंग बिडिंग होती है. अच्छा. उसका जो कंपनी L1 होती है उसको वो टेंडर्स मिलते हैं. उसके बाद काम शुरू होता है. फिर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं. अगर हम L1 होते हैं तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं क्लाइंट के साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम शुरू कर देते हैं. और अब आपने जैसे ये बताया मुझे कि क्लाइंट आपको सेलेक्ट करता है, तो आप जैसे क्लाइंट के साथ वर्क करते हो, आप उनके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली आपको एक एक्स्ट्रा अपना दिखाना पड़ता है ना कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज. एग्जैक्टली. माय कंपनीज कंप्लीटली बिलीव इन प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन. बेसिकली एथिक्स आपकी कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी कंपनी का एथिक्स, वर्क एथिक्स. And that you use with your clients as well. Yes, definitely. और शायद वही एक डिफरेंशिएशन पार्ट रहता है आपका और दूसरी कंपनीज के बीच में. बिकॉज हमारा एक क्लाइंट सेटिस्फाई है तो वी नीड टू पोच फॉर अदर बिजनेस. वो बिजनेस तो चल के आपके पास आएगा. आप उनके लिए इतना काम करते हो, आपके पास उनकी इतनी प्राइवेट चीजें भी, मतलब ऑब्वियसली मस्ट बी हैविंग गुड नॉलेज अबाउट द प्राइवेट स्टफ. सो आप उसको कैसे सिक्योर करते हो? मतलब हाउ डू दे बिलीव यू कि हाँ जो भी उनका अपने बहुत ही सिक्योर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वही जाके काम करते हैं. अच्छा. So they are providing VPNs. VPNs के थ्रू कोई भी जो इंफॉर्मेशन है लीक नहीं हो सकती है. So VPN आप एक थोड़ा लेमैन लैंग्वेज. VPN एक सिक्योरिटी सिस्टम है. अच्छा, okay. जिसके अगर वो VPN रहता है तो वो हर किसी को वो VPN नहीं मिलता है. जिसको मिलता है वही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. अच्छा. तो ये पता रहता है कि किसने वो इंफॉर्मेशन एक्सेस की. तो सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छी टाइट सिक्योरिटी रहती है. तो बिल्कुल मतलब आपका काम बिल्कुल A1 काम है. एग्जैक्टली. सो अच्छा, अब जैसे बच्चे आपके साथ काम करते हैं, आप उनको ट्रेनिंग भी देते हो, आप उनको बताते हो कि
कौन सा प्रोजेक्ट में आपको डिप्लॉय करना है, तो Right. उसके लिए आप कैसे सेलेक्ट करते हो? मतलब आप पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो या आप अपना स्टाफ सेलेक्ट करते हो? नहीं, प्रोजेक्ट तो हम स्टाफ भी पहले से होता है, प्रोजेक्ट भी आता है। प्रोजेक्ट भी Exactly, आता है हाँ। एंड देन यू हैव लेकिन टू हम ट्रेन। देखते हैं ना कि जैसे हर बच्चा बराबर नहीं है, एफिशिएंसी चेक करते हैं हाँ, कि अब कुछ टेक्नोलॉजी वाइज डिफर होते हैं बच्चे, कुछ रिएक्ट पे हैं, कुछ लारावेल पे हैं, कुछ क्या कहते हैं आपका जावा पे हैं, तो हाँ। अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। तो जितना हाई एंड प्रोजेक्ट है, तो हम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर लेवल के बंदे लगाएंगे उसमें। अच्छा, अच्छा। ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट है तो डेवलपर, नॉर्मल डेवलपर भी हमारा काम कर लेगा उसमें। और जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज तो आती ही रहती हैं, Exactly. एवरी डे आप कुछ भी देखोगे नया आएगा। हम्म। आप उस चीज के साथ कैसे डील करते हो? हाउ डू यू ट्रेन योर स्टाफ अकॉर्डिंगली? बिकॉज 400 लोगों को हर वक्त ट्रेन करना फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, मुझे ऐसा Right. लगता है। हम जैसे कैंपस प्लेसमेंट करते हैं, तो हम हायरिंग जो करते हैं नई टेक्नोलॉजी की, उसी हिसाब से करते हैं कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट उस तरफ है, क्योंकि पहले से ही उनका डिफाइन होता है, दे वांट टू गो इन जावा, रिएक्ट या एआई, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक तो बैकग्राउंड का हमें बेनिफिट मिलता है, प्लस हम उनको ट्रेन करते हैं फिर इन हाउस अपने यहाँ, तो हो जाता है। तो मतलब वो जो न्यू टेक्नोलॉजी, अब जैसे आजकल वैसे जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जी। तो आप उसको किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हो कि क्या मतलब आगे बाकी ये बहुत We are अच्छा going to चलने वाला है? start new wing this year. एक Okay. डेटा साइंस का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जी, another is analytics and third one is AI. ओके। So we already had employees for AI and Okay. अभी उनकी ट्रेनिंग going on है। गोइंग ऑन है Yes. एंड प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली आगे Definitely. आपके जो है इसी के बेस पे होंगे या कैसे, मतलब? हाँ, उसी के बेस पे उसी AI के- के प्रोजेक्ट्स हमारे पास लाइन अप हैं। ओके, ऑलरेडी लाइंड Yes, अप yes. है। हम हायरिंग ही तभी करते हैं जब हमारे पास पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स डले हुए होते हैं। सो आपकी जैसे कंसल्टेंसी फर्म भी है जी। अब देखिए, बच्चे बहुत, हर बच्चा तो 99% वाला नहीं होता, राइट। तो आप जो बेसिक देखते हो, मतलब आप ये देखते हो कि सब जगह से जो रिजेक्टेड बच्चे हैं मैं उनको उठाऊं, या फिर मतलब आप जाके देखो, अगर मैं अपने पॉइंट, मतलब जो मैं देखती हूँ वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं तो हम उसमें एक थोड़ा ऐसा बच्चा लें जिसको कुछ नॉलेज हो। ओके। दो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो बट बेसिक नॉलेज, बिकॉज मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि हर जगह से बच्चा अगर निराश हो गया हाँ जी, तो कोई तो होना मेरा चाहिए। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करता है इससे। अच्छा। आई नेवर हायर्ड अ स्किल, आई ऑलवेज हायर Okay. एटीट्यूड, बिकॉज स्किल सेट मैं सिखा सकती हूँ, एटीट्यूड मैं सिखा नहीं सकती। सो आई ऑलवेज बिलीव इन एटीट्यूड। अगर बच्चे का एटीट्यूड अच्छा है, उसका एटीट्यूड लर्निंग का है, तो मैं इमीडिएटली उसको हायर करती हूँ। बट अगर बच्चा बहुत स्किल्ड है बट एटीट्यूड इशू है, तो मैं कभी उसको हायर नहीं करूंगी कि उसका एटीट्यूड मेरे बाकी अदर जो अलग एम्प्लॉइज हैं उनके उनको साथ भी खराब करेगा। खराब करे। सो आई नेवर बिलीव इन हायर अ स्किल सेट, आई ऑलवेज बिलीव इन हायर अ एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड शुड बी देयर। सो अब जैसे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप बता रहे थे, तो अभी ये आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहें कुछ थोड़ा सा भी, बिकॉज कि- इट्स वी आर वर्किंग फॉर अ पीएमओ, सो इट्स कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट। अभी हमारा बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ल्ड बैंक का, जिसको वर्ल्ड बैंक फंड करता है। दैट इज आई रेड प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट। So what उसमें- is this about? हाँ, उसमें क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एसपी ऑफिसेज होते हैं, हाँ, उसमें एक इंजीनियर बैठता है, Okay. आईटी डेवलपर बैठता है, वो हमारा होता है। अच्छा। ठीक है, जितना भी कहीं कोई एक्सीडेंट होगा, तो वो जो डेटा गैदर किया जाता है, वो हमारा इंजीनियर गैदर करके पुलिस डिपार्टमेंट को देता है ओके। कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, इस एरिया में है, तो वो पूरे टाइम एक्टिव रहता है जो इंजीनियर होता सो है। बेसिकली वो इंफॉर्मेशन देता है Exactly. पुलिस स्टेशन में, क्योंकि यहाँ पे राइट, ये एक्सीडेंट हुआ है। और ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक फंड करता वर्ल्ड है। बैंक फंड का, दैट्स वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट एज वेल। और ऑलरेडी वी हैव डन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट 3 years, और अभी एक्सपेंशन आ गया हमारे पास 2 years का और। अच्छा, यस, और वो हमारा बहुत बड़ा डिफेंस, हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है। वी आर डूइंग ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, सब हम डिफेंस के लिए करते हैं। सो आपका अभी तक के और जो आपने, मतलब ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपने डिस्कशन में लाना चाहोगे जी। बिकॉज ऑफ द सीक्रेसी एंड ऑल, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो जो आपका बहुत अच्छा रहा हो एंड जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है? मेरा मतलब माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वाज अ CPPRI। CPPRI क्लाइंट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज मेरा कंपनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट था फर्स्ट वो। प्रोजेक्ट था। और
क्या हुआ था, जब हम वहां गए तो क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा एटीट्यूड होता है, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। तो जब हम वहां गए तो दे वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। उनके साथ हमें बड़ा फाइट करना पड़ा, क्योंकि उनको लगता था अरे कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मुझे मतलब क्यों इसकी जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। तो उनको पहले तो उनका माइंडसेट चेंज करने में हमें टाइम लगा कि सर ये आपके काम को स्मूथ करने के लिए किया जा रहा है, आपके काम को अभी थोड़ा आपको लग रहा है कि आपके काम को बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपको सीखना पड़ रहा है, सीखना पड़ेगा। मतलब आपके लिए नया है ये। लेकिन बिलीव मी, ये आपके लिए एक बार ऐसा आएगा कि 1 क्लिक सारा हो जाएगा। तो उनके एक्सेशन रजिस्टर्स जो होते हैं जिसमें उनका सारी डिटेल्स होती हैं, तो वो डिटेल्स नहीं देते थे हमें अच्छा। हाँ करने के लिए। धीरे धीरे हम उनके साथ जेल अप हुए। मैंने बताया ना, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। और हम अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, क्लाइंट कुछ भी कहे बट यू नीड टू बी हम्बल, पोलाइट। एक दिन क्लाइंट आपकी सुनने लगेगा, और वही CPPRI में हुआ, क्लाइंट हमारी सुनने लगा, सारा डेटा प्रोवाइड करने लगा। और अब उनके लिए इतना इजी हो गया, हमने ट्रेनिंग दी उनको 6 मंथ्स। मेरा एक एम्प्लॉय कंटिन्यू वहां पे रहा और उसने उनको ट्रेनिंग दी। अब उनके लिए इतना इजी हो गया है कि वो 1 क्लिक सब कुछ करते हैं। कहते हैं मैम ये तो बड़ा इजी हो गया है, मतलब हम एक फोन के थ्रू तुरंत कर देते हैं। डिजिटलाइजेशन हो गया, Exactly. एक इन्वॉल्वमेंट हो गया। Exactly. एंड आई थिंक आज की हम जनरेशन को देखें और अगर आज का हम ऑरा देखें तो Exactly. इट इज अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, Yes. है ना। आजकल पेटीएम है, आपका फोन पे है। यहाँ तक कि मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है, वो लोग जिनके कोई बैंक अकाउंट्स नहीं थे, जी they have opened their bank accounts, they have come on phone pay and paytm, Right. जैसे आप vegetable Vegetable vendors ले लो, vendors, right. कहाँ कैश इतना चलता था। तो one of the best thing of technology जो मुझे लगते है that is digital Right. thing। so आप डिजिटल मार्केटिंग में भी डील करते हो, Yes, yes, digital है ना। marketing तो में। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो कि मुझे लगता है कि ये मैंने अच्छा एक चेंज लाया है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल फील्ड में। ये तो आपने मुझे एक एक्सपीरियंस बताया। Right. आई जस्ट वांट टू नो आपका कितना वर्क कल्चर कैसा रहा है, आपने कितना एफर्ट किया, बिकॉज कोई भी पोस्ट बिना एफर्ट के तो नहीं मिलती। Right. दैट आई वांट टू से दिस वेरी क्लियरली, क्योंकि आज भी आप जिस पोस्ट पे हैं दैट रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, Right. डेडिकेशन, और ऑब्वियसली आपके अपने एथिक्स भी होते हैं। लर्निंग का एक जो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने भी वो करके ही आप ऊपर आए Initially it हो। was very tough for me to switch from banking background to IT background. IT बैकग्राउंड But now I'm feeling it's in my blood. अगर मैं सो भी रही हूँ, मुझसे कोई टेक्नोलॉजी का कुछ पूछता है, so I am able to answer that. So So it's all about your learning attitude, or you can learn anytime, anywhere. anywhere. Yes. तो आप और अपना कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताना चाहेंगे कि जैसे जब आपने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली फंडिंग का भी एक इशू रहता है, Right. तो डिड यू रेज द फंडिंग या आपने खुद से It's ही my अपना bootstrap funding. जो भी है मेरा अपना है, बिकॉज मैं कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को नहीं लाना चाहती थी, बिकॉज दिस कंपनी इज टोटली बेस्ड ऑन एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। और अगर कोई नया इन्वेस्टर आता है तो वो उसका जो मेरा मोटिव कभी भी पैसा कमाना नहीं था इस कंपनी से। मेरा मोटिव हमेशा से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था और नीड क्रिएट करना था क्लाइंट के लिए। तो अगर कोई नया जो इन्वेस्टर आता, क्योंकि उसका मोटिव इन्वेस्ट कर रहा है, उसका मोटिव कभी भी ये नहीं होता है कि वो एथिक्स और प्रिंसिपल के लिए काम करे या यूथ के लिए काम करे। मैं हमेशा से यूथ के लिए काम करना चाहती थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, अनएजुकेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि यू नीड टू बी एक्ट फॉर दैट थिंग। मतलब बड़ी वो है ना कि सोफे पे बैठ के चाय की चुस्कियां लेने से तो बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आपके एक्ट करने से ही आएगा। और हर बंदे को यही सोचना है कि शायद मैं कुछ एक्ट करूं और उससे बदलाव आए। तो वो एक बदलाव तो मैंने धीरे धीरे लाना शुरू किया है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, कि जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। सेकेंड, आई वांट टू डिवोट माई सेल्फ इन एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो, बिकॉज मुझे ये लगता है कि शिक्षा का अधिकार हर किसी का बराबर है। तो हम बात तो चंद्रयान की करते हैं, लेकिन आप रूरल क्षेत्र में जाके देखिए, उनको कंप्यूटर नहीं पता है कि वो दिखता है कैसा है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको कंप्यूटर दिए हैं। अच्छा। इसलिए कि बच्चों को ये तो पता चले कि कंप्यूटर दिखता कैसा है, कैसे, तो हम उनसे कैसे। और ऐसा नहीं है टैलेंट वहां नहीं है, टैलेंट वहां भी है, बट वहां एक्सपोजर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है।
सही चीजें उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही तो हैं। आई थिंक और हम आपकी क्यों जैसी सोचते हैं कि हर चीज गवर्नमेंट करे? गवर्नमेंट के लिए करेक्ट भी इतना इजी नहीं है कि हर चीज करना। हम अगर इतना भी चेंज लाए ना तो गवर्नमेंट को उतना बड़ा चेंज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं वही बोलने जा रही थी, जैसे आप सोच रहे हो, आप अपनी कंपनी ओन करते हो, आप चलाते हो, साथ साथ आप ये काम भी करो विदाउट थिंकिंग कि मुझे इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, और Exactly. आप किसी एचजीओ के साथ ऐसा एसोसिएटेड भी नहीं हो, आप नहीं अपनी है। मर्जी से इच्छा से काम करते बिकॉज हो। मेरी कंपनी में एक CERS फंड रहता है, वो Okay. मैं हर साल निकालती हूँ सोशल वर्क करने के लिए, जिसमें Okay. मैं एजुकेशन सेक्टर को सपोर्ट करती हूँ, वृद्धाश्रम को सपोर्ट करती हूँ, कहीं किसी लड़की की शादी हो रही है उसमें सपोर्ट करती हूँ, या कहीं मंदिर बन रहा है उसमें सपोर्ट करती हूँ। ये मेरी अपनी विश है कि आई वांट टू सपोर्ट फॉर माय कंट्री। मैं आई डोंट वांट टू ब्लेम ऑन माय मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट, आई वांट टू डू बाय माय ओन। जो भी मैं चेंज ला सकती हूँ समाज में वो मैं लाना चाहती हूँ। दैट्स वंडरफुल थॉट। अभी आपका एक्सपेंशंस का क्या प्लान है, मतलब आप यहीं पे रुक गए हो या आगे क्या करना चाह रहे हो? दिस ईयर वी आर गोइंग टू एक्सपेंड और मे बी टचवुड मे बी वी आर एक्सपेंड इंटरनेशनल। अच्छा, वेरी नाइस। यस, सो थिंग्स इन क्यू। तो उसके लिए भी कुछ हायरिंग है? उसके लिए हायरिंग बिकॉज उनका कुछ अपनी पॉलिसीज हैं, तो इनिशियली तो वी विल हायर फ्रॉम देयर ओनली, अच्छा, then we will deploy our employees. I also want to give opportunities to my employees, then I will deploy my employees to abroad. तो अब्रॉड इज ऑब्वियसली एक अलग, Yeah, they need to be taste that exposure ना। एग्जैक्टली। बाद में वापस आ जाए। बट मुझे सबसे अच्छी चीज ये पता है क्या लगी आपकी कंपनी की, आप अपॉर्चुनिटीज जो बिल्डअप कर रहे हो, जो गवर्नमेंट ऑब्वियसली आजकल हम सब जानते हैं इलेक्शन सीजन है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन मुद्दा सब कंपनीज का मेन मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हटाना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। एग्जैक्टली। एंड यू बीइंग अ पर्सन जो पॉलिटिकली इतना एक्टिव भी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी इतना नहीं, मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ। पॉलिटिकली आप किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, उसके बावजूद आप ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड अगर आपके जैसे और भी लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें तो शायद गवर्नमेंट के पास एक रीजन ही ना बचे एग्जैक्टली कि भाई गवर्नमेंट अकेले कितना करेगी। वी कितना नीड टू बी चेंज आवरसेल्व्स। हमें भी सोचना पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमें भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट वी कैन डू फॉर माय कंट्री, बिकॉज ये कंट्री ने आपको सब कुछ दिया है, सो वी नीड टू बी थिंक ओवर इट। और मेरी कंपनी तो दिस बिलोंग्स टू कंप्लीटली फॉर माय एम्प्लॉयज, व्हाटएवर वी हैव दिस इज ऑल फॉर माय एम्प्लॉयज ओनली। सो आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहते हो स्टार्टअप्स को, क्योंकि आजकल बच्चे स्टार्टअप्स में बहुत अपना करियर ढूंढते हैं कि हम लोग ये करेंगे एंड देन विल स्टार्टअप, एक कंपनी फॉर्म करते हैं, तो आपका उस पे क्या टेक है, आप क्या टिप्स देना चाहते हो? मेरा तो बस टिप्स तो कुछ नहीं, ये सजेशन है कि जस्ट स्टे देयर। बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। देखिए अगर वो प्रोडक्ट सेक्टर में है, अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं और वंस ट्वाइस अगर वो फेलियर होते हैं तो उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। इट डजंट मीन, बट दैट्स वेरी ह्यूमन नेचर। आपको लगता है ना कि आप एक बार फेल हो गए, आपका इच्छा भी नहीं होती वापस होने में, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? नहीं, बट देखिए सक्सेस ऑलवेज कम फ्रॉम प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, फेलियर आपको आपकी सक्सेस के उतने ही करीब लेके जाता है, बिकॉज देन यू केम टू नो दैट वेयर आई एम लैकिंग, वेयर आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, वहां पे आप सक्सेस के और करीब चले जाते हैं। सो मेरा सिर्फ इतना सा सजेशन है कि इतना ना सोचे कि क्विक मनी के लिए ना सोचे, और दूसरा जस्ट बी पेशेंट। पेशेंस तो हर एक फील्ड में आई थिंक रिक्वायर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन रहे। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है ना, सक्सेस विल कम टू यू। आपको कभी सक्सेस को चेज नहीं करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज द ओनली मंत्र फॉर एनीबॉडीज सक्सेस। चाहे वो आपका वर्क एथिक्स में डिसिप्लिन हो, चाहे आप अपने पर्सनल में भी रहे तो पर्सनली भी रहते हो, एक डिसिप्लिन तो रिक्वायर्ड होता है डेफिनेटली। तो आकांक्षा जी, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया आप गवर्नमेंट के साथ तो ऑब्वियसली एसोसिएटेड हो, तो आप क्या प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क करते हो? यस, कुछ हमारे प्राइवेट क्लाइंट्स भी हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। एंड जो आपके जो प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया कि आप, क्योंकि आपको ऑब्वियसली वो भी बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्राइवेट के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस दैट थिंग? मेरे एक्चुअली मैं बताऊं मोस्टली 90% तो गवर्नमेंट क्लाइंट्स ही रहते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है सबसे सेफ है, पैसा आपका कभी वो नहीं होगा, फंसेगा नहीं। तो मैं आपने चाहती जो हूँ, ये एक काम बहुत किया, बड़ा पॉइंट है जो जी। आपने आज मुझे बताया है, इस पॉडकास्ट पे किया है, कि
पैसा गवर्नमेंट के साथ सेफ है। बिल्कुल सेफ है। अगर आप एथिकल तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, बिलीव मी, अब वो आपको प्रेज करते हैं और आपका पेमेंट हमेशा ऑन टाइम होता है। टचवुड, मेरी कंपनी को 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं दिस Okay. ईयर, और मेरा कभी भी एक सिंगल पैसा कभी भी गवर्नमेंट में रुका नहीं, रुका नहीं है। नेवर। मतलब वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और टाइम पे आपकी पेमेंट आती है। बल्कि And- प्राइवेट में कभी होता है डिले हो जाता हाँ, है। मैं यही पूछना चाह रही थी। तो आपका जैसे ऑब्वियसली डीलिंग विद गवर्नमेंट एंड डीलिंग विद प्राइवेट पीपल, तो कितना डिफरेंट रहता है? आपको कौन ज्यादा परेशान करता है? नहीं, परेशान तो कोई भी नहीं करता है कोई भी सच, नहीं एक्चुअली करता। नहीं। देखो, प्राइवेट का अपना एटीट्यूड है, गवर्नमेंट का अपना एटीट्यूड है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना अलग तरीके से काम करता है, प्राइवेट अलग तरीके से काम करता है, दैट्स इट। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। मुझे इनके साथ मुझे ज्यादा टचवुड अभी दिक्कत तक कोई होती है। चैलेंजेस मैंने फेस नहीं फेस किए नहीं हैं। किए। हाँ। सो अब चैलेंजेस पे आए, तो आपने कौन सा ऐसा चैलेंज फेस किया है कि आपको लगता है कि ये मेरा वर्क कल्चर का, या मैं कह रही हूँ पूरा IT करियर इंडस्ट्री में, का। हाँ, एक चैलेंज है विच आई हैव फेस एंड आई डोंट वांट कि आने वाली जनरेशन इसको फेस करे, तो उसके लिए कोई टिप्स अगर आप देना चाहें तो? सबसे बड़ा चैलेंज जो करंट एरा का चल रहा है, दैट इज अ जॉब हॉपिंग। अच्छा, same आजकल thing, के okay. बच्चे तुरंत जॉब स्विच करना चाहते हैं, हम्म। विदाउट नोइंग दिस फैक्टर कि हाउ मच लर्निंग इज देयर, वेयर वी आर गोइंग टू मेक मनी। करेक्ट। वहां मुझे लर्निंग मिलेगी भी नहीं मिलेगी, या मैं सपोर्ट में ही तो नहीं रह जाऊंगा, मुझे डेवलपमेंट आजकल करने को mass- मिलेगा भी नहीं। मास जो एम्प्लॉयमेंट हो जाती है जी। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, बट उनको डिप्लॉय नहीं करते काम के लिए। एग्जैक्टली, एक साल तक दे आर वेटिंग फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, बस उनके पास ऑफर लेटर है हाँ। और वो वेट कर रहे हैं। तो उनको ये समझना है। प्लस सेकेंडरी उनको समझ नहीं आता है। अब जैसे पैकेजेस देते हैं, बड़ी कंपनी कोई भी होगी या जो भी कंपनीज हैं, 20 lakhs का पैकेज दे दिया, दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच दे आर गेटिंग इन हैंड। 20 लाख में आपको 10 लाख इन हैंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तब तो वो वर्थफुल है, Worthful है। वर्थलेस है वो 20 लाख एंड का मोर यू प्रोजेक्ट। नॉट इवन लर्निंग। हाँ, लेकिन आपको- बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। एंड आई थिंक अब हाई टाइम है कि ये इशू को सॉर्ट भी किया जाए। जैसे आकांक्षा जी की कंपनी है, ऐसे हम जो और भी कंपनीज होंगी, बहुत सारी कंपनीज चैलेंजेस फेस कर रही हैं, इस चीज बट उसका एक ही तरीका है जो मुझे लगता है कि वी नीड टू क्रिएट बिलोंगिंगनेस आवर एम्प्लॉय, वी शुड प्रोवाइड देम अ कंफर्ट जोन। ठीक है, लर्निंग, हमें अगर उनको लर्निंग प्रॉपर मिलती रहेगी तो शायद वो पैसे के लिए उतना नहीं भागेंगे। तो ये हमें एज एन एम्प्लॉय ही नहीं है, एज एन इंडस्ट्री भी हमें चेंज करना है कुछ ना कुछ, जिससे कि एम्प्लॉयज स्टे करें आपके साथ। आपके यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं? जैसे आपने जैसे मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो हर एक फील्ड में, जैसे मैं भी एविएशन से कनेक्ट करती हूँ, तो उसमें भी एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आपके भी अपनी कंपनी के कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं? बिल्कुल, जब हमारे यहाँ रिसोर्स को फाइनल करते हैं तो हमारे यहाँ रिटन एग्जाम भी होता है, प्लस मशीन टेस्ट भी होता है। सो इट इज नॉट इजी कि आप सीधा घुस जाओ, no, लेकिन not एक at all. अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है, जो मैं समझ Exactly, पा रही हूँ आपकी yes. बात से, कि हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। नाउ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर देखिए आप कॉलेज पास आउट करके आ रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। इट शुड बी देयर। अगर आपको वो भी नहीं है तो आपका लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है, अच्छा, तो okay. उसको फिर हायर करने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा क्योंकि उसने अपने पापा के पैसे को ही सीरियसली नहीं लिया, तो कंपनी के पैसे को सीरियसली कैसे लेगा? तो उसको हायर नहीं करना है। ये बात तो आपने बहुत सही कही है। आजकल ये मतलब एटीट्यूड तो है ही है कि कंपनी के पैसे पे मौज करो। एग्जैक्टली, ये एटीट्यूड तो है, एंड आई थिंक समवेयर जैसे आपके लेवल के लोग ऑब्वियसली में से अग्री भी करेंगे, ये समझते भी हैं कि कौन वर्थ है जी, इस चीज का और कौन वर्थ नहीं है। तो कुछ एम्प्लॉयज तो हमारे बहुत सेंसिबल होते हैं, वो ओवर मैच्योर्ड होते हैं, मतलब अपनी एज से ज्यादा, और कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है कर लेंगे, क्या करना है, पापा के पास 10 एकड़ खेत है, तो बस ठीक है, तब तक जब तक शादी नहीं हो रही तब तक नौकरी मिल जाए, तब तक शादी हो जाएगी उसके बाद तो बस 10 एकड़ खेत है उसको करना है। एंड उसके वजह से आप लोगों को प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने में बहुत दिक्कत तो होती होगी। हम कोशिश करते हैं कि उस तरीके के एटीट्यूड को हम हायर ना करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाइस, जो भी हम प्रोजेक्ट्स उठाते हैं उसमें मैन पावर तो लगती है। एंड इफ यू सी फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे हमने सिर्फ एक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पोर्ट्रे किया, हमने एम्प्लॉयज की तरफ से भी बात की है। डेफिनेटली, तो दोनों तरफ से वो एक सेंस रहनी चाहिए कि हम आपके साथ काम मिलकर करेंगे तो
आप भी अचीव करेंगे एंड कंपनी भी Yes. अचीव करती है। कंपनी डेफिनेटली एम्प्लॉयज को फोकस अपनी लर्निंग पे होना चाहिए कि हम इस कंपनी से कितना लर्न कर रहे हैं, लर्न कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे आपकी लर्निंग रुक जाए वहां नहीं रुकना चाहिए, ओके, क्योंकि कहते हैं रुका हुआ पानी भी खराब होता है। खराब हो जाता है। तो आपको लर्निंग अपनी स्टॉप नहीं करनी है। अगर आप लर्निंग में हैं तो आपको पैसा अपने आप आएगा, उसके लिए आपको चेज नहीं करना पड़ेगा। बट लर्निंग पे मेन फोकस यूथ का अगर होगा तो एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट है और कंपनी को भी प्रॉफिट है। सो जैसा आपके ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स आपने बताए होते हैं इंटरनेशनली, व्हाट आई एम सेइंग इज जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं और प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपको चेस करना पड़ता है लिटरली, जैसे आपने बताया टेंडर ये सब चलता है, नहीं, तो इट इज उसमें क्वाइट चेज कर नहीं सकते एक्चुअली। टायरिंग। उसमें तो एक्चुअली बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई टेंडर निकला, 100 कंपनी ने किया जो स्टार्टअप में है, जैसे बिकॉज आई एम लाइन अप विद स्टार्टअप, तो 100 कंपनीज ने उस टेंडर को किया, उसमें अप्लाई किया। उसमें से बहुत सारे क्राइटेरिया की वजह से 20 कंपनी पहले ही आउट हो गई, क्योंकि उसमें टेक्निकल क्राइटेरिया होता है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया होता इट है। इज लाइक अ टिप फॉर आवर दिस न्यू कमर्स ऑल्सो, Yes. कि जब भी आप शायद अप्लाई करें तो पहले अपने क्राइटेरिया को Exactly. मैच करें। पहले जब भी कोई भी टेंडर निकलता है तो उसकी आरएफपी निकलती है, तो वो आरएफपी को अच्छे से थॉरली स्टडी करना होता है कि हम उस क्राइटेरिया में मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तो लोग पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड होता है, टेक्निकल राउंड में बहुत सारे निकल जाते हैं। फिर फाइनेंशियल राउंड होता है, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल कोट्स देते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को इतने पैसे में करेंगे, तो उसमें जो सबसे लोअर कोट देता है उसको वो प्रोजेक्ट मिलता है। दिस इज विद प्राइवेट ऑल्सो। दिस इज विद प्राइवेट आल्सो। अच्छा, बिकॉज आई वाज ऑलवेज, मैं तो बिल्कुल इस फील्ड से नहीं हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा और कुरेद कुरेद के पूछना पड़ रहा है कि मैं यही सोचती थी शायद सिर्फ गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बिडिंग होती है एंड टेंडर निकलता है। गवर्नमेंट इज वेरी मतलब डिसिप्लिन इंटैक्ट विद द प्रोस्पेक्ट कि भैया मुझे इसी तरीके से काम करना है, और जो एंटाइटल है उस प्रोजेक्ट के लिए उसी को वो प्रोजेक्ट मिलेगा। अच्छा चलो, मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे जी। ऑब्वियसली भ्रष्टाचारी बहुत एक हॉट टॉपिक रहता है जी। फॉर एवरीथिंग, हर एक फील्ड में ये चीज होती है, करप्शन इज देयर। आपकी फील्ड में करप्शन का कितना, आप, मैं ये बोले आप करप्टेड हो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सेइंग कि ऑब्वियसली करप्शन इज देयर, आपको क्या लगता है कि करप्शन इज एवरीवेयर? एवरीवेयर? मुझे लगता है कि मतलब उसके क्राइटेरियाज अलग हैं। अगर हम घर में देखें तो घर में भी करप्शन है, ठीक है, ऑफिस में देखें ऑफिस में भी करप्शन है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका परसेप्शन क्या है उस करप्शन को देखने का, कि आप उस करप्शन को देख किस नजरिए से रहे हैं। आपकी फील्ड में करप्शन है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा है, बट थोड़ा बहुत हर जगह है। कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन कंसर्न टू कंसर्न, कंपनीज टू कंपनीज, पर्सन टू पर्सन। तो ये है, बिकॉज जनरली जब भी टेंडर बिडिंग इन सब की करप्शन बात तो होती है वेजिटेबल वेंडर, 2 वेंडर्स बैठे हुए हैं और प्राइस ऊपर नीचे कर देते हैं क्लाइंट को देख के, वहां भी करप्शन। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग एज अ करप्शन। समवेयर देन अगेन आपकी वही वाली बात बिल्कुल ठीक है, एथिक्स। एग्जैक्टली। अगर आपकी कंपनी में अगर आप अपने क्लाइंट्स को एथिक्स से डील कर रहे हो तो आई थिंक क्लाइंट भी आपसे सेटिस्फाइड रहेगा और वो आपके साथ स्टे भी करेगा। सो अभी आपके क्लाइंट लिस्ट में आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग कि ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आपके साथ लिटरली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए हैं एंड दे हैव स्टेड विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम? राइट, 7-8 क्लाइंट्स तो मेरे ऐसे हैं जिनमें कंटिन्यू जिनके साथ काम कर रही हूँ अच्छा, सिंस 5-6 years। 5-6 years। यस। एंड यू आर वर्किंग ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो ताकि आपके सस्टेनेबिलिटी अच्छी और रहे। इसलिए भी चेंज हो जाते हैं क्लाइंट, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टेंडरिंग इज देयर। हाँ, सो अगर मतलब वो चाहे भी तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कि तो चाहे उनको करप्शन नहीं है। कितना भी हाँ, वो कितने भी सेटिस्फाई हैं मेरे काम से, बट अगर टेंडर में मैं फॉल नहीं कर रही हूँ, मैं उस टेंडर को विन नहीं कर रही हूँ, तो आई विल बी नॉट वर्क विद देम, चाहे वो कितना भी चाहे। तो बहुत बार इसलिए भी क्लाइंट छूट जाते हैं क्योंकि टेंडरिंग में जो L1 आएगा, जो क्वालिफाई करेगा, उसको वो टेंडर मिलेगा। और जिसमें मैं L1 आ जाती हूँ फॉर्चुनेटली, तो वो क्लाइंट के साथ कंटिन्यू होता है। करेंटली आपके कंपनी में कितने क्लाइंट्स हैं? मोर देन इट्स जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड more योर than वर्क। 150 clients। मोर देन 1, इट्स अ गुड नंबर। Yes।
It's a good number. Plus with your employees of 500 or so, तो बहुत अच्छा स्केल है एंड इट इज अ ग्रोइंग कंपनी. Yes. तो मतलब आप कैसे अपना देखते हो कि आप यहीं पे ही और कंपनी एस्टैब्लिश करोगे ताकि अपॉर्चुनिटीज और मेरा क्रिएट हो? I want what my vision was that I want to create a such environment where my employees will stay with me long lasting. वो रिटायरमेंट मेरे पास से रहे. आफ्टर रिटायरमेंट आई वांट टू लिव विद देम, वर्क विद देम. सो कुछ ऐसे हमारे आइडियाज हैं जिसपे मैं अभी काम कर रही हूँ अच्छा कि आफ्टर देयर रिटायरमेंट उनको कभी किसी चीज की परेशानी ना हो. दे शुड नॉट आस्क फॉर एनी हेल्प फ्रॉम देयर किड्स. दे शुड बी इंडिपेंडेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट. आप क्या अपनी खुद की एनजीओ भी स्टार्ट करने जा रहे हो? माइट बी. सो द प्रोसेस आपके माइंड में है. यस. तो So- आप उसको उस चीज को कैसे देखते हो? आप अपनी एनजीओ में क्या क्या मतलब ऑब्वियसली मैंने आपकी कंपनी बारे में बहुत कुछ पूछा ना, सिंस आपका इंक्लिनेशन एनजीओस में भी है, yes. तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे. Not exactly NGO. I just want to work for society. जो सोसाइटी की गलत धारणाएं हैं और जिसमें विडंबना है जो सोसाइटी की, उस पे मैं कुछ काम करके सोसाइटी को हेल्प करना चाहती हूँ. And with मतलब the help of your लाइक जैसे अभी रिसेंटली बहुत चल रहा है कि ओल्ड एज पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट टेकिंग केयर बाय देयर किड्स. तो आई वांट टू सपोर्ट दैम, क्योंकि मुझे तो लगता है हर जो पेरेंट्स हैं उसमें ईश्वर की वो है, रूप है. हम मंदिर जाते हैं, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो अपना सजदा करते हैं, अपना सिर झुकाते हैं. कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा मंदिर नहीं है. तो हम पेरेंट्स के लिए क्यों सोचें कि ये पेरेंट्स मेरे नहीं किसी और के हैं. तो जब आफ्टर 60 वो ईश्वर का ही रूप होते हैं. तो अगर आपको सच में ईश्वर में आस्था है और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उनको टेक केयर करिए. मैं उनको करना चाहती हूँ. मैं छोटे बच्चों को टेक केयर करना चाहती हूँ. आई वांट टू नर्चर देम इन अ सच वे कि दे शुड अंडरस्टैंड देयर कल्चर, एजुकेशन सिस्टम. तो वो चेंज लाने के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे. उसके लिए मुझे एक टीम चाहिए, अकेले में नहीं कर सकती. सो आई वांट टू, बिकॉज आई एम मेकिंग माय एम्प्लॉइज लाइक दिस. एब्सोल्युटली मैं वही बात पे आने वाली थी कि आप अपने एम्प्लॉयज को ऑलरेडी उस फील्ड के लिए रेडी कर रहे हो. एग्जैक्टली. तो जब हम वो काम शुरू करेंगे तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम होगा, वर्किंग हैंड्स होंगे, और जो मेरी तरीके की थॉट प्रोसेस वाले होंगे, मतलब पैसा नहीं बनाना सोचेंगे, जो प्योरली सोशल वर्क करना चाहेंगे. सो जैसे अब आपने बताया, अपने एनजीओ का भी बताया, आपने अपनी कंपनी का भी बताया, थोड़ा सा मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे जाना चाहूंगी. हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ विद दिस काइंड ऑफ हेक्टिक शेड्यूल? मुझे लगता है कि अगर आप सारी चीजों को इंक्लाइन कर दो, टाइम बाउंड कर दो, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं. आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है. तो जैसे आई हैव अ स्मॉल किड, मतलब 8 years old बॉय. तो मुझे पता है कि टिल द टाइम ही इज इन स्कूल आई कैन बी इन ऑफिस, बट वंस ही विल बी बैक फ्रॉम स्कूल माय 100% टाइम बिलोंग्स टू हिम. I don't want to give that time to anybody because he is my first priority. Second is my company. करेक्ट. तो अगर आप इस तरीके से अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज, तो कभी लाइफ में मुझे लगता है प्रॉब्लम आती है. Then how do you manage your meetings along with, because meetings तो वो स्कूल टाइम लेके नहीं होती. नहीं, my clients are very understanding. They know this fact कि मैम will be not available after 2 o'clock. तो मैं हमेशा अपनी मीटिंग जो शेड्यूल करती हूँ फर्स्ट हाफ में ही करती हूँ. फर्स्ट हाफ. और दे अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू कि एज अ मदर आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय सन आल्सो. So you are nurturing your family also well, Yes. taking care of the clients. Because the way I can nurture my son, nobody else can do that. So अब एक जो मैं नेक्स्ट एक चीज और पूछना चाहती हूँ. आपका इंक्लिनेशन जो मेरे को पता है, आपने अपने बेटे को थिएटर में भी जी डाला है. So what about the art and culture? What your thoughts are there? आपने क्या सोच के अपने बेटे को भी थिएटर में डाला? एंड सिंस यू आर सो एक्टिव ऑलरेडी इन आईटी इंडस्ट्री, और सडनली आपने अपने बेटे को उस साइड में, उस फील्ड में डाला. बिकॉज देखिए, आपको शायद पता नहीं, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ थिएटर. Wow, wonderful. So I know the importance of theater, because theater is the place where you can polish your kid like anything. आपको जो उसकी शाइनेस है, you can remove that. आप उसको आउटस्पोकन बना सकते हैं. It doesn't mean कि I want to make him an actor. No, not at all. Even my son is always says, Mama, why are you expending so much? I'm not going to join your company. I want to serve for my country. So it doesn't mean कि
I am expanding this company for my son. Same as well as that I am not putting him in theater कि उसको मुझे actor बनाना है. एक्टिव बना But I just want to polish him. I want to make him a perfect person as a best human being. He need to understand the society's needs. सो बेसिकली जो आप एनजीओ चलाना चाहते हो और जिस थॉट प्रोसेस आप चलाना चाहते हो, यू हैव स्टार्टेड दैट फ्रॉम योर ओन फैमिली Yes. कि मैं अपने बेटे को जो उसका मन है ऑब्वियसली वो करे. Yes, he is free from my side. I never bound him that he need to be join me or any other business. He is completely free. Whatever he want to do in his life, he can do. जिसमें उसको खुशी मिले. My first priority उसकी खुशी है. वो जिसमें खुल के हंसे. जो वो चूज करे जो उसकी जरूरत नहीं, उसका पैशन हो. एक जो लेडी है ना, शी कैन बी अ मदर, शी कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली वेल, शी कैन बिल्ड हर ओन कंपनी वर्थ करोर्स, एंड साथ के साथ उनका रुझान आर्ट एंड कल्चर में भी हो सकता है. जी. तो इसका जो जीता जागता एग्जाम्पल मैं जो आपको देख रही हूँ, आप इतना सारा मल्टीटास्किंग करते हो, थक नहीं जाते? नहीं, मतलब मैं एक्चुअली कभी उसको काम की तरह लेती ही नहीं हूँ. मुझे लगता है कि मतलब मेरी कहना है इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस. वो करने में मेरी खुशी है, तो जब मैं खुशी से वो काम करती हूँ तो मैं थकती ही नहीं हूँ. अब आप सोचिए ना, जब हमारे पेरेंट्स थे, हमारे पास वी आर हैविंग 1 or 2 किड्स, उनके पास 4 5 बच्चे थे. दे वेकअप अराउंड 4 AM और रात तक काम कर रहे होते थे, और वो भी कभी नहीं थकते थे क्योंकि वो काम करने में उनकी खुशी थी. सो माय पेरेंट्स नर्चर्ड मी इन दैट वे कि व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, जस्ट बी हैप्पी. इफ यू विल हैप्पी, यू कैन डू एवरीथिंग इन परफेक्शन वे. दैट यही मंत्र है मेरी लाइफ का. तो आप जो मेरे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं या अपने कुछ थॉट्स जो आप पहुंचाना चाहते हैं सब तक, तो मैं ये आपकी अपॉर्चुनिटी, मतलब आई वुड लाइक टू से कि आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट में थोड़ा सा जो बच्चों को समझ आ जाए, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज के साथ, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को मेरा आप सिर्फ समझाना यही चाहिए. मैसेज है यूथ के लिए, बच्चों के लिए, इवन सभी के लिए. आपको एक लाइफ मिली है, आप वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है. आप ये मत करिए, ये जो करंट एरा चल रहा है ना कि हर चीज को हैशटैग कर देना, हर चीज को आप उस पर डाल देना सोशल मीडिया पे. प्लीज स्टॉप दैट. आप जिंदगी को एंजॉय करिए, आप उस मोमेंट को एंजॉय करिए जिसमें आप हैं. आप उसको कैप्चर करने के लिए वो मोमेंट तो एंजॉय कर ही नहीं रहे हैं. आप वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिले. आप वो काम करिए जिससे किसी और को आप खुशी पहुंचा सकते हैं. आप वो मत करिए कि दुनिया को क्या दिखाना है. देखिए, आप जो करेंगे वो दुनिया को अपने आप दिख जाएगा. आपको दिखाने की जरूरत कभी भी है नहीं. दिखाते वो लोग हैं जो एक्चुअल होते ही नहीं है. ठीक है, जो आप होते हैं वो ऑटोमेटिकली दिखता है. तो उसमें किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करिए. आप वो करिए जो आप हैं, आप जो करना चाहते हैं, और जिसको करके आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है. वेरी थैंक यू. बिल्कुल. इससे मुझे एक बात और याद आई जो मैं अपने व्यूअर्स का ज़रूर शेयर करूँगी कि आकांक्षा जी को बहुत अवार्ड्स फंक्शन के लिए भी इनवाइटी होते हैं एंड उनको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है. बट टू माय सरप्राइज वो कभी भी किसी अवार्ड फंक्शन पे नहीं गई हैं. उन्होंने खुद से जाके शायद कोई अवार्ड लिया भी नहीं है. एंड बहुत ही रेयर, मतलब कभी मैं जाती हूँ, हाँ, कम ही जाती हूँ. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन. जो आपने मैसेज दिया, आपने मैसेज ही उस तरह से दिया कि भाई इसके पीछे मत भागो. एग्जैक्टली. जो टाइम आप अपने आप को शोकेस करने में लगा रहे हैं, हाँ. वो आपकी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रहा है. डाउन कर. आपकी प्रोडक्टिविटी टुवर्ड्स योर काम होनी चाहिए. हाँ. कि भैया जो मेरे पास इतना टाइम है, आई नीड टू बी डू माय वर्क इन बेस्ट मैनर. हाँ. ठीक है, हमें शोकेस नहीं करना है, अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करना है. पोर्ट्रे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपना डेडिकेशन 100% टुवर्ड्स अपने वर्क में देंगे. और यही मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि मुझे लगता है कि द वे आई कैन नर्चर माय किड, नोबडी एल्स कैन डू दैट. बिकॉज वो प्रिंसिपल्स, वो एथिक्स, व्हाट आई कैन पुट इन हिम, नोबडी एल्स कैन डू दैट. सो इनके इसी स्टेटमेंट के साथ मैं भी
अपना पॉडकास्ट आज यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। हमने इतनी सारी बातें की। आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में एक आईटी इंडस्ट्री की कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना, एज़ वेल एज़ हमने सिर्फ़ सुपीरियर्स की बात नहीं की, हमने एम्प्लॉइज़ की भी बात करी, हमने वर्क कल्चर की भी बात करी, व्हिच इज़ वेरी कमेंडेबल, और आपने बहुत खुल के बात करी। मुझे सबसे अच्छा ये लगा, आकांक्षा जी ने बहुत खुल के बात करी, बच्चों को क्या करना चाहिए उसके टिप्स भी दिए। सो थैंक यू सो मच आकांक्षा जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट्स कि आपने इतना हमें समय दिया। Thank you थैंक so यू much. सो मच। Yes. Guys, please do like, share, and subscribe our Foxy podcast. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for invitation. And it's a better place to showcase your views. Thank you so much.